السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ ٹو آل مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر ایک سوال دیکھ رہے ہیں، یعنی جس ٹاپک کا ہم یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں یہ ٹاپک بھی کافی اہم ہے۔ اس ٹاپک سے پیپر 1 کے لیے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، تو چلیے ہم دیکھیں گے انفرادی اختلافات کسے کہتے ہیں، یعنی انڈیویجول ڈفرینس۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تمام جو تھیوریز امپارٹنٹ ہیں پیپر 1 اور پیپر 2 کے لیے، وہ تمام ویڈیو کی شکل میں آپ تک شیئر کی گئی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں جا کر وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو ٹیلی گرام چینل جوائن کریں۔ تو چلیے انڈیویجول ڈفرینس یعنی انفرادی اختلافات کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ انفرادی تفاوت یعنی انڈیویجول ڈفرینس کیا ہے۔ دیکھیں، تمام جاندار اشیاء اور بے جاندار اشیاء میں فرق ہوتا ہے، یعنی جاندار اشیاء بھی لیں اور بے جان اشیاء بھی لیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، جاندار اشیاء کی اگر بات کریں تو دو انسان ہیں، تو دونوں انسان ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور بے جاندار اشیاء کی بھی اگر ہم بات کریں تو بے جاندار اشیاء بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیبل اور کرسی دونوں کو دیکھ لیں، یعنی بے جاندار اشیاء میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک جاندار دوسرے جاندار سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک جاندار دوسرے جاندار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی فیملی کا ہی مشاہدہ کریں، یعنی اگر آپ کے 2 بھائی یا 3 بھائی ہیں تو تینوں بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، یا پھر آپ کی تینوں بہنیں ہیں تو تینوں بہنیں ایک جیسے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دیکھیں، جانداروں کے گروہ میں چند پہلو مشابہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جانداروں کا جو گروہ ہے اس میں چند پہلو مشابہ ہوتے ہیں، یعنی اعضاء سے مراد انسان کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ اختلافات کی وجہ کیا ہوتی ہے، یعنی چند اعضاء ہی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم جاندار انسان کو دیکھیں یا پھر اجسام کو دیکھیں، جانداروں کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توارث اور ماحول۔ اس کے بعد دیکھیں، ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سوچنے، دیکھنے، سمجھنے، جسمانی نشو و نما میں، جنس میں، مذہب کے لحاظ سے، رویے، دلچسپی میں۔ اور ایک بات دیکھیں، انفرادی تفاوت کو سب سے پہلے یعنی انڈیویجول ڈفرینس جو ہے، اس کو سب سے پہلے سر فرانس گیلٹن نے اپنی کتاب ہیریڈیٹی جینیس جو کہ 1869 میں پیش کی، اس میں انہوں نے اس انڈیویجول ڈفرینس کو لکھا، شائع کیا، یعنی انسان کے اندر جو تفاوت یعنی انڈیویجول فرق ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، یہ تمام چیز انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد دیکھیں، سر فرانس گیلٹن کو بابائے یوجینک، یہ کافی اہم پوائنٹ ہے پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے۔ سر فرانس گیلٹن کو اس نام سے جانا جاتا ہے، یا پھر بابا یوجینک کسے کہتے ہیں تو سر فرانس گیلٹن رہے گا۔ فادر آف یوجینک کسے کہا جاتا ہے تو سر فرانس گیلٹن کہیں گے، یا پھر سر فرانس گیلٹن کو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہمارا جواب رہے گا بابا یوجینک یعنی فادر آف یوجینک۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، انفرادی جو اختلاف ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے درون شخص انفرادی فرق۔ دیکھیں، یہ کافی اہم ہے، پچھلے ٹیٹ امتحان میں اسی سے ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ درون شخص انفرادی فرق، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے انٹرا انڈیویجول ڈفرینس۔ تو چلیے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی انفرادی اختلاف ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں دیکھیں۔ پہلا والا ہے درون شخص یعنی انفرادی فرق، انٹرا انڈیویجول ڈفرینس۔ انٹرا کے معنی اندر کے ہوتے ہیں، یعنی خود کے اندر کے ہوتے ہیں۔ ایک ہی انسان کے اندر مختلف شعبے میں پسند اور ناپسند الگ ہوتی ہے۔ دیکھیے، انسان ایک ہی ہے لیکن انسان کے اندر مختلف شعبے میں پسند اور ناپسند الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں تو میٹھا یعنی سویٹس، یعنی کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے سویٹس پسند ہے، لیکن سویٹس میں کون سا سویٹ پسند ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی میٹھے میں سب میٹھے پسند نہیں ہوتے، جیسا کہ میں ذکر کروں، خوبانی کا میٹھا ہے، کدو کی کھیر ہے، یا پھر ڈبل کا میٹھا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میٹھا پسند ہے، لیکن ہر میٹھا پسند نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ایک میٹھے کے اوپر زیادہ اس کا دل آ جاتا ہے، اس کے اوپر کم آ جاتا ہے۔ اور ویسے ہی بات کریں تو جماعت یعنی ہر جماعت، مثال کے طور پر ایک بچہ 5th کلاس میں اگر اسٹڈی کر رہا ہے تو دیکھیں، وہ ریاضی کے اندر اگر انٹرسٹ رکھتا ہے تو زیادہ مارکس لائے گا، انگریزی کے اندر تھوڑا کم انٹرسٹ رکھے گا، یعنی دلجوئی اس کی کم ہوگی۔ اب اردو کے اندر تھوڑی اور کم ہوگی، یعنی سبجیکٹ وائز اس کی پسند الگ ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہی انسان ہے، مختلف شعبے میں پسند الگ ہوتی ہے، یعنی پسند اور ناپسند دونوں الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کھیل کی بات کریں
बच्चों से ये कहा जाएगा कि चलिए बच्चों हम खेलेंगे, तो बच्चे खुशी के साथ मैदान में टीचर के साथ या फिर पीटी सर जो भी है उसके साथ में आएंगे। लेकिन जब खेलने की बात आएगी, थोड़े बच्चों को ये कहा जाएगा चलिए कबड्डी खेलते हैं, यानी खेलना है बोलते कि बच्चे बाहर आ जाते ग्राउंड के बाहर। लेकिन जब खेल के अंदर उनको कौन सा खेल पसंद है, ये बच्चों के अंदर। थोड़े बच्चे बोलेंगे कि भाई सर हम लोग आज क्रिकेट खेलेंगे, यानी थोड़े बच्चे कहेंगे कि सर हम आज कबड्डी खेलेंगे, थोड़े बच्चे कहेंगे सर आज हम रनिंग खेल खेलेंगे। यानी इसी तरीके से हर शोबे में एक ही इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ शोबे में पसंद और नापसंद, यानी इंसान एक ही है, खेल पसंद करता है, लेकिन खेल में भी कई ऐसे खेल होते हैं जिसको वो पसंद करता है, कोई ऐसे खेल होते हैं जिसको वो नापसंद करता है। उसी को हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। चलिए इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। किसी एक ही शख्स के अंदर पाई जाने वाली सलाहियत, दिलचस्पियों, रुझानात में जब फ़र्क पाया जाता है तो हम इसको दरूं शख्स इनफरादी फ़र्क कहते हैं। यानी एक ही शख्स में मुख्तलिफ़ अक़साम के फ़र्क मौजूद होते हैं। यानी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही शख्स के अंदर पाई जाने वाली सलाहियत, दिलचस्पियों, रुझानात में जब फ़र्क पाया जाता है उसी को हम दरूं शख्स इनफरादी फ़र्क या फिर इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। देखिए ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। इनफरादी इख्तलाफात दो किस्म के होते हैं। पहला है दरूं शख्स, यानी इंट्रा मीन्स अपने अंदर जो फ़र्क होता है उसी को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर देखें, 10 तक हम तालीम जब हासिल करते हैं, इंटर में जब एडमिशन के लिए जाते हैं, इंटर में जब एडमिशन लेंगे तो कई बच्चे एमपीसी लेंगे, कई बच्चे बीपीसी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, कई बच्चे सीईसी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यानी यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबे में इनकी पसंद और नापसंद अलग होती है। यानी ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई सब्जेक्ट पर इनको महारत होती है, ये उसी में दिलचस्पी दिखाते हैं, और कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उनको नापसंद होते हैं। चलिए और अच्छे से समझने के लिए देखें, टीएसटेट का इम्तिहान कुछ दिन में या फिर कहें 12 जून को मुनक़िद किया जाने वाला है। तो अब यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, यानी जिसको जिस सब्जेक्ट में महारत है, उससे पहले ये देख लें कि हर सब्जेक्ट से 30 सवालात पूछे जाने वाले हैं। यानी 5 सब्जेक्ट हैं, 30 सवालात पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 निशानात मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट हैं उसमें कई सब्जेक्ट ऐसे हैं उसको पसंद होते हैं और कई नापसंद होते हैं। जो पसंद सब्जेक्ट यानी पसंद के सब्जेक्ट होते हैं, उसका जिसके अंदर दिल लगता है, आसानी के साथ समझ में आते हैं, उन सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और जो नापसंद है उन सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। यानी एक ही इंसान है, मुख्तलिफ़ शोबे में पसंद और नापसंद अलग होती है। उसी को हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। यानी दरूं शख्स खुद ही के अंदर इनफरादी जो फ़र्क होता है उसी को हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैन शख्स इनफरादी फ़र्क यानी इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए दुनिया में कोई भी फ़र्द एक जैसा नहीं होते, यानी दुनिया में जितने भी फ़र्द हैं वो एक जैसे नहीं होते। उनकी सलाहियतों में ख़्वा वो जिस्मानी हो या फिर ज़हनी या फिर जज्बाती, समाजी, इनमें फ़र्क मौजूद होता है। देखिए दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक दूसरे जैसे नहीं होते, उनकी सलाहियतों में फ़र्क होता है, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, इन तमाम में फ़र्क देखा जा सकता है। बस यहाँ तक के जो जुड़वा बच्चे होते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस रहने दीजिए या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस, इन बच्चों में भी ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी, समाजी, ये तमाम फ़र्क पाया जाता है। यानी कोई भी फ़र्द एक जैसी सलाहियतों वाले नहीं होते। उसके बाद देखें, मुख्तलिफ़ सलाहियतों, दिलचस्पियों, रुझानात, पसंद और नापसंदगी, अफराद के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को ही इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। यानी मुख्तलिफ़ सलाहियतों में, दिलचस्पियों में, रुझानात और पसंद नापसंदगी अफराद के दरमियान में जो पाई जाती है, यानी एक अफराद और दूसरे अफराद के दरमियान में जो फ़र्क पाया जाता है, चाहे वो सलाहियतों को ले लीजिए, जिस्मानी हो या फिर ज़हनी, जज्बाती, ये तमाम जो फ़र्क पाया जाता है, यानी एक इंसान और दूसरे इंसान में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे, बैन शख्स इनफरादी फ़र्क कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमने पहले इसमें देखा, यानी इंट्रा में, यानी दरों इनफरादी जो फ़र्क है उसमें देखा कि अपने अंदर ही जो फ़र्क पाया जाता है दिलचस्पियों में, रवैयों में, वो तमाम चीज़ें इंट्रा इंडिविजुअल में आती है। अब यहाँ पर दूसरों के साथ अगर हम तमीज़ करें, दूसरों के साथ अगर रख कर देखें, खाने के एतबार से देखिए, किसी एक शख्स को एक खाना पसंद आता है, एक डिश पसंद आती है, तो दूसरे को दूसरी डिश पसंद आती है। जमात के एतबार से देखें,
जमात के अगर एतबार से देखा जाए तो इंटरमीडिएट में हर कोई एक ही ग्रुप को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं उनमें दाखिला लेंगे। अगर खेल के एतबार से देखें तो खेल भी सभी को एक पसंद नहीं आएगा, बल्कि किसी को कबड्डी, किसी को क्रिकेट, किसी को वॉलीबॉल, किसी को बैडमिंटन, किसी को हॉकी या फिर किसी को टेनिस, यानी मुख्तलिफ खेल को पसंद करेंगे, यानी इंडिविजुअल अलग अलग खेलों को पसंद करेंगे। इसी जो यानी जो फ़र्क इनमें पाया जाता है, जिस्मानी हो या फिर ज़हनी, इसी को हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किसकी वजह से होता है, इनफरादी जो फ़र्क है वो किसकी वजह से होता है। तो पहले यानी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी वो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये इंडिविजुअल डिफरेंस के, इनफरादी फ़र्क के। तो पहला है तवारुस, दूसरा है इन्वायरमेंट। देखिए तमाम इंसानों में जितना भी फ़र्क है, यानी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल, ये तमाम फ़र्क दो वजूहात की बिना पर होता है। उसके वजूहात क्या हैं, तवारुस और दूसरा है माहौल। यानी तवारुस क्या चीज़ है, माहौल क्या चीज़ है, पिछले वीडियो में आपको बतलाया गया है, फिर भी एक मरतबा देख लें। ये जिनीनियाती होते हैं। तवारुसी असरात, हम उन असरात को कहते हैं जो पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा होते हैं, यानी पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा होते हैं, और ये असरात हम अपने वालिदैन, ख़ानदान, आबो अजदाद, नस्ल दर नस्ल चलने वाली खुसूसियात से पैदाइशी तौर पर हासिल करते हैं। इनमें हमारी जसामत, शक्ल व सूरत, चेहरे की बनावट, बाल के रंग, आँख का रंग, ज़हानत वगैरह शामिल है। दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में पैदा होने वाले बच्चों की जसामत, शक्ल व सूरत, जिल्द की बनावट, ज़हानत वगैरह में फ़र्क पाया जाता है। देखिए हेरिडिटी जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। हेरिडिटी की वजह से ही बच्चों में कई सारी तब्दीलियाँ देखने को मिलती है, चाहे वो जसामत को ले लीजिए, शक्ल व सूरत को ले लीजिए, ये जिनीनियाती होते हैं, यानी जेनेटिक्स तौर पर तवारसी असरात ये जो हैं वालिदैन के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल होती हैं। यानी तवारसी असरात वो हैं जो पैदाइशी तौर पर हमें अपने ख़ानदान से मिलती हैं, जिन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। दरों इख्तलाफात जो हैं वो तवारिस की बुनियाद पर होते हैं, और बैन शख्सी माहौल की बुनियाद पर ये इख्तलाफात होते हैं। यानी इन इख्तलाफात को अगर देखा जाए तो ये इख्तलाफात तवारिस और माहौल, यानी तवारिस और माहौल की बुनियाद पर ही ये इख्तलाफात पाए जाते हैं। तो देखिए इन यानी इतनी जो टॉपिक दी गई है, हमें बस इतना याद रखना है कि दरो शख्स से इनफरादी फ़र्क यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस किसे कहते हैं, और दूसरा बैन शख्स इनफरादी फ़र्क किसे कहते हैं। दरो शख्स जो इनफरादी शख्स है, यानी अपने ही अंदर जो मुख्तलिफ़ शोबों को लेकर पसंद और नापसंदगी होती है, उसी को हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। और बैन शख्स इनफरादी जो फ़र्क है, यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, वो दूसरों के अंदर यानी अपने और दूसरों के अंदर जो फ़र्क पाया जाता है, वही फ़र्क को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे। तो चलिए अब हम सवाल को देखेंगे, यानी पहले जो सवाल दिया गया था उसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सुमंत इज़ एफिशिएंट इन डूइंग मैथमेटिक्स बट ही इज़ नॉट एफिशिएंट इन प्लेइंग चेस। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, वेरिएबल इंडिविजुअल डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंडिविजुअल डिफरेंस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए अभी हमने देखा यानी दो, यानी वेरिएबल और कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस खारिज हो जाते हैं। अब बचा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और एक है इंट्रा। इंट्रा से मुराद हमने अभी देखा था कि अपने ख़ुद के अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पर सवाल में वही पूछा जा रहा है कि सुमंत हिसाब के करने में माहिर है लेकिन वो चेस के खेलने में माहिर नहीं है। तो ये किसकी मिसाल है, तो जवाब हमारे यही रहा कि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी उसके अंदर ख़ुद जो डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर दरों शख्स इनफरादी फ़र्क, यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, यही उसका आंसर रहेगा। हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पर समझा था। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।